Hello everyone, welcome back to another interesting session of Ankita's tutorial. Today my topic is scheduling algorithms, which is a part of operating system. Today I am representing this topic because some students have requested me to upload some video regarding operating system. So I chose the topic that is scheduling algorithm. As you all know that it is very important. So let's get started. Before proceeding this video, please do subscribe my channel, those who are new to my channel, and please share and like my video, and please do comment in the comment section so that I will upload more videos. Okay, thank you. So let's proceed. So first our concept is scheduling algorithms. It is a very important concept, I can say that, for operating system. That scheduling algorithm means, if I will represent the definition of scheduling algorithm, it is a way to select process from ready queue and put it in a CPU. रेडी क्यू से कोई भी प्रोसेस सिलेक्ट करके सीपीयू में हमें पुट करना है. अच्छा, रेडी क्यू मतलब क्या होता है? दैट इज योर रैम. रैम से कोई भी प्रोसेस सिलेक्ट करो और उसे सीपीयू में डालो. सीपीयू मतलब दैट इज योर रनिंग क्यू, or you can say running state. Ready queue means ready queue or ready state, and CPU means running state. Okay, now if we are using uniprocessor, this is overall the definition, that used a way to select a process from the RAM में नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि P1, P2, P3 अप टू Pn तक हमारा नंबर ऑफ प्रोसेसेस होता है. रैम से हम उस प्रोसेस को सिलेक्ट करके उसको सीपीयू में डालेंगे. That is all what scheduling algorithm stands for. पर अगर हम यूनिप्रोसेसर सिस्टम की बात करें, if we are using uniprocessor system, it means we have only one CPU. Means आपका क्या होता है कि आपका रैम में नंबर ऑफ CPUs होते हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं रैम में, P1, P2, P3 up to Pn. These are the number of processes. If the CPU is uniprocessor, then what will happen? It will select. We have only one CPU and it will select only one process at a time. एक ही टाइम में एक ही प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा. उसका मतलब भी है यूनिप्रोसेसर सिस्टम. ओके, अभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में क्या होता है, ये तो हो गया आपका डेफिनेशन. शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज ऑफ टू टाइप्स. क्या क्या होता है? प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, अनदर वन इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स है और नॉन प्रीएम्प्टिव के अंदर आल्सो बहुत सारे एल्गोरिथम्स है. एंड दीज टू आर वेरी मच इम्पोर्टेंट. आपका ये आता है क्वेश्चंस, नेट हो, गेट हो, या फिर जो भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है. ये दीज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू कैन से. सो इसमें क्या आता है? SRTF, दैट इज shortest remaining time first, longest remaining time first, round robin algorithm, round robin. This is priority based coming under both preemptive and non preemptive. उसके बाद आता है non preemptive में FCFS, that is first come first serve, SJF shortest job first, then longest job first, and multi level queue. हम लोग ये सारे शेड्यूलिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में. पर ये डिस्कशन करने से पहले जरूरी क्या है कि आपको ये पहले मैं बताऊं कि प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है. शेड्यूलिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया. एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मतलब क्या है कि हम नंबर ऑफ प्रोसेसेस होगा रैम में, आप उस प्रोसेस को सिलेक्ट करके सीपीयू में डालोगे और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करेगा अपने हिसाब से. सो वो होता है शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. अभी वो जो दो टाइप के कॉन्सेप्ट है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव, जिसके अंडर ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, हम उसको पहले एक्सप्लोर करेंगे. सो बिफोर दैट वी फर्स्ट हैव टू नो व्हाट इज प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. सो लेट्स गो देयर फर्स्ट. What is the preemptive scheduling? Preemptive scheduling, if I will go for the definition, when a process transitions from a running state to a ready state or from a waiting state to a ready state. This is the definition. Now, what it exactly means? See, अभी ready state में आपका एक process है. Suppose it is P1, and we will send this process to running state, or you can say that is to CPU. Okay, we will send P1 to CPU. Okay, अभी क्या होता है ना, उसमें रेडी स्टेट में P1 था,
हमने सेंड किया इसको P1 को रनिंग स्टेट में, दैट इज टू CPU। अभी CPU क्या करेगा, CPU का काम क्या होगा, P1 दैट इज द प्रोसेस व्हिच हैज रीच्ड टू CPU, इट विल एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस। ओके, इतने में अगर कोई और एक प्रोसेस आता है, सपोज अनदर प्रोसेस हैज रीच्ड टू CPU दैट इज P2, then what will CPU do? CPU will preempt the process P1 and it will start to execute the process P2। Okay, are you getting my point? What will CPU do? First P1 को वो preempt करेगा, मतलब वो P1 को halt करेगा, जो प्रोसेसिंग वो कर रहा था उसको वो रोक के, वो अगर P2 आ गया है तो वो P2 को पहले प्रायोरिटी देके उसको एग्जीक्यूट करेगा। इतने में अगर P3 आ रहा है तो फिर वो P2 को प्रीएम्प्ट करके P3 को एग्जीक्यूट करेगा। मींस प्रीएम्प्ट करना है मतलब जो इनका जो टाइम जितना है, सपोज P1 एक प्रोसेस है जो रनिंग स्टेट में पहुंचा, उसका टाइम सपोज है 3 सेकेंड्स, पर CPU क्या करेगा, इतने में अगर P2 आ गया तो वो P1 का जो 3 सेकेंड्स है उसको सपोज वो 2 सेकेंड्स एग्जीक्यूट किया था, अभी P2 आके पहुंचा है तो वो P1 को प्रीएम्प्ट करके P2 को एग्जीक्यूट करेगा। तो इतने में क्या होगा, अगर अभी वो P2 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो इट विल सेंड P1 टू रेडी स्टेट, it will send back to the P1 to ready state, or you can say to the waiting mode। अभी P1 वेट करेगा कब तक, जब तक P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे आपका पहला फैक्टर आता है टाइम क्वांटम, अनदर फैक्टर आता है इसके अंदर में प्रायोरिटी। Time quantum means CPU has already decided that it will take how much time to execute a single process। If I will explain it to you a simple example, suppose 5 students are there in a class and I am teacher, so the 5 students are process for me and I am the CPU। so मैंने डिसाइड किया है इस स्टूडेंट का मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, तो मैं स्टूडेंट नंबर 1 के पास गई, 3 क्वेश्चन उनका सॉल्व की, फिर उसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 के पास गई, मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व की। पर ये तो मैंडेटरी नहीं कि हर स्टूडेंट का 3 ही क्वेश्चन होंगे, किसी स्टूडेंट का 5 भी क्वेश्चन हो सकता है, पर मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं हर स्टूडेंट का 3-3 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगी उनका। तो पहले मैं स्टूडेंट 1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व की, उसके बाद उसका 5 क्वेश्चन है पर मैं 3 सॉल्व की, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं 3 सॉल्व करूंगी। उसके बाद मैं स्टूडेंट 2 को स्विच कर रही हूँ, उसका फिर मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, फिर आई विल स्विचिंग टू स्टूडेंट 3। इसमें ये क्या होता है ना, ये टाइम क्वांटम मैंने डिवाइड कर लिया है कि मैं पर स्टूडेंट में इतना इतना क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगी, ये होता है टाइम क्वांटम। तो क्योंकि ये मैं डिसाइड करूंगी, मतलब मैं जो CPU ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को वो कितना टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा। अभी जिस स्टूडेंट का 5 क्वेश्चन है उसका मैं 3 सॉल्व की, तो उसके बाद मैं स्टूडेंट 2 को जब स्विच कर रही हूँ तो उसका और 2 क्वेश्चन रह गया है स्टूडेंट 1 का, तो वो भी वो क्या, उसको मैंने वेटिंग मोड में रखा, दैट यू शुड वेट फॉर ए मोमेंट व्हाइल आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट 2। उसके बाद उसका भी मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद मैं स्टूडेंट 3 को गया। इसका एडवांटेज क्या होता है, किसी का 5 क्वेश्चन होगा, किसी का 10 क्वेश्चन होगा, तो सबको इक्वल प्रायोरिटी मिलेगा। इक्वल मैं वैल्यू करती हूँ कि सब स्टूडेंट को जल्दी जल्दी टाइम, जितना मैंने टाइम 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लिया स्टूडेंट 1 का 2 का, मैं सबका इक्वल सबको पार्टिसिपेशन करने का चांस मिलेगा। अगर मैं स्टूडेंट 1 का 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, फिर स्टूडेंट 2 का जितना होगा उतना सॉल्व करूंगी, ऐसे होकर जब स्टूडेंट 5 के पास पहुंचूंगी तो ये प्रोसेस बहुत लेंथी और बहुत डिले हो जाएगा। इसलिए जो CPU है, इफ आई विल टेल यू अबाउट द CPU एंड द प्रोसेस, इसीलिए CPU टाइम क्वांटम में डिवाइड करता है ताकि हर प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करने के लिए उसको चांस मिले, ताकि जो एंड में जो प्रोसेस होगा उसका डिले नहीं होगा। तो ये हो गया आपका टाइम क्वांटम। अब प्रायोरिटी क्या है, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5 स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास, आई एम सॉल्विंग द 3 क्वेश्चंस फॉर ईच स्टूडेंट, इतने में क्लास का टॉपर आ गया, तो वो उसका प्रायोरिटी हो गया कि उसका मुझे वो 2 या 3 क्वेश्चन लेके आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये जो 5 स्टूडेंट्स का काम मैं कर रही थी, उन 5 स्टूडेंट को मैं हल्ट करके जो टॉपर है उसको प्रायोरिटी बेसिस में मैं पहले उसका काम करूंगी। तो ये 5 को मैंने अभी वेटिंग मोड में रख लिया उसका काम करने के लिए। तो इसको भी प्रायोरिटी बोलते हैं कि सपोज नंबर ऑफ प्रोसेस है, उसमें से एक हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अगर आके पहुंच गया तो मैं उस हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को वैल्यू करूंगी, उसको एग्जीक्यूट करेगा CPU, उसके बाद वो नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। सो प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग इज ऑल you should know that CPU can preempt one process and can switch to another process, and in this moment it will send the first process to the ready
ready state or running state. That is all what preemptive scheduling stands for. Now what is non-preemptive? Non-preemptive means if we are giving a process to CPU, means running state को अगर दे रहे हैं from ready state से, then this process will execute entirely, but according to the burst time of the process. Burst time of the process means अभी क्या होता है, अभी इसमें क्या है, ready state में है और उसको हम भेजे रनिंग स्टेट में, सपोज एक प्रोसेस को, ओके, P1 को भेजे, तो अभी क्या होगा, इट विल एग्जीक्यूट द प्रोसेस P1 एंटायरली. ये प्रोसेस का जितना एग्जीक्यूशन टाइम है, सपोज सीपीयू ने जो डिसाइड किया इस P1 प्रोसेस का जितना एग्जीक्यूशन टाइम है, जो बर्स्ट टाइम उसका जितना है, मतलब एंटायर बर्स्ट टाइम इज टाइम टेकन बाय द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इनसाइड द सीपीयू, उसको ही बर्स्ट टाइम बोलते हैं. तो जितना प्रोसेस सीपीयू ने डिसाइड किया कि उसको इतना ही रन करेगा, तो पूरा उसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही वो दूसरे प्रोसेस को टच कर सकता है. इस स्टेज में क्या होता है, देयर इज नो चांस दैट सीपीयू विल सेंड द प्रोसेस टू रेडी स्टेट. ये रिटर्न नहीं हो सकता प्रोसेस आपका नॉन प्रीएम्प्टिव. ये सिर्फ प्रोसेस पूरा एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा. वाइल यहाँ पे प्रोसेस जा सकता है रेडी स्टेट में, पर यहाँ पर प्रोसेस एग्जीक्यूशन हो करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. एंड